Okay, so we are live now. Assalamu alaikum everyone. This is me, Falaknas Fatma, your host for today. And as you all know that we have another exciting webinar today of the topic mindful parenting. So first of all, I would like to introduce my supremely talented guest that she is Zohra Umar and founder of Mentoring Hub as it is written over there. That she is basically the international top person ambassador, founder of the Mindful Story Network. Hustler, the Young Development Journal, promoting human capital development via skills and learning globally, an inventive thinker and a passionate mentor, undoubtedly, an NLP master practitioner, international mindful expert, certified counselor, mentor, and trainer. Her vision is to play community and mindful skills training and development. So, thank you, Zora, for joining us, and welcome to Learning Labs platform. Assalamu alaikum. Finally, this comes into action. Your founder and the Learning Lab is also a very close affinity because of the fact that we are connected via the Connected Women platform. So this is a very happy opportunity for me to finally come and bring something into action as far as Learning Lab is concerned. So thank you so much. Yeah, thank you. Now, along with her, we have two beautiful mothers of this community, Learning Labs community. So, first one is Hifza Fawad, and she's from UK. She's a twin mom, a teacher, and a student. Graduated from the University of Karachi, having 8 years of experience in teaching. Besides that, working mock driving as a sales executive in UK. So, welcome Hifza as well, and thank you for joining us today. Thank you very much. Okay. And along with her, we have Nilma Faraz. She is mom of three. She is an intelligent employed as a visiting faculty member at the University of Karachi and also works as a freelancer writer. She has recently completed her course, Work for MPhil Economics. So we have such a talented mothers as well today on board. Thank you. Thank you. Yeah. So basically, जोहरा जैसे कि आज सबको टॉपिक पता है एंड वी शुड बी लाइक बायलिंगुअल ताकि सबको अच्छे से और आराम से बहुत समझ में आ जाए दैट माइंडफुल पेरेंटिंग नॉट अ ड्रीम. इस पे आने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, लेट्स डिस्कस दैट बेसिकली व्हाट इज माइंडफुल पेरेंटिंग. व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग, देन विल कम टुवर्ड्स इट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम. और ये जो दो सुपर फीमेल्स आपने दिखाई है माशाल्लाह, juggling with so much and the kids, so I feel quite lightened down, and in no way I stand across these women who are mashallah holding up so much as well. So एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि mindfulness को within our continent and within our communities एक बहुत फैंसी सा वर्ड बना दिया है और ये बड़ा एक पॉश सी चीज बना दी है, हालांकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी रियलिस्टिक एंड इट इज वेरी ह्यूमनिस्टिक. तो आई वुड जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल और वो बड़ी सादी सी चीज है. वो ये कि माइंडफुलनेस हमें फलक सिर्फ सिखाती इतना है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को, अपनी प्रेजेंट रिसोर्सेस को किस तरह बेहतर समझ सकते हैं. सो माइंडफुलनेस ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि हम में से कोई इंसान, कोई माँ, कोई बाप या कोई पेरेंट प्रैक्टिस ना कर सके. तो पहले तो मैं चाहूंगी कि ये मिसकंसेप्शन जो है कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम मेडिटेशन में चले जाएं और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दें और पॉपुलेशन कम करके ब्लाइंड नीचे कर दें, सब कुछ बंद कर दें, getting yourself out of noise pollution. Generally ये concepts जो हैं वो हमारे build-up हो गए over the years. और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह मियाँ gave me the opportunity to become the person who's in the field to break the stigma off. So the good news is कि ये वो चीज है जो हम सब consciously practice कर सकते हैं. अब remaining in the present का मतलब ये कि ये जहां आसान चीज है फलक, वहां सब लोग अग्री करेंगे, हिफ्जा भी अग्री करेगी, नीलमा भी अग्री करेगी और कम्युनिटी भी अग्री करेगी कि ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग भी है. Because we had so much to do, it's not easy saying कि जी आप सिचुएशन में रहें और प्लीज जरा काम डाउन हो जाए. ये वो चीजें हैं जो कि आपको
हम लोगों को, मुझे बहुत दफा अपसेट कर देती ना, आपको कोई दूसरा इंसान बोले यार काम डाउन, तो अगर हम बहुत गुस्से में होते या कोई चीज हमारे मुताबिक नहीं जा रही होती पलक, तो हम और आप क्या कहते हैं, यार छोड़ दो, तुमको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू काम डाउन, यही होता है ना। लेकिन मेरा with training with the international mindful experts, the thing that I was able to learn first hand was कि mindfulness जो है वो हमारा conscious decision है फलक, हिफ्जा एंड नीलमा, बिकॉज आप एक साथ है कॉन्वर्सेशन में और बाकी जो कम्युनिटी मुझे सुन रही है, हम लोग अब क्या कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहते हैं या नहीं, ये वो ही डिसीजन है जो हमें माइंडफुलनेस की ट्रैक पे ला सकता है, सिंपली पुट। Okay. Yeah. So basically, it seems very a normal thing, as you said, कि हम लोग इस चीज को बहुत हवा बना लेते हैं या इतना मुश्किल सा कोई टर्मिनोलॉजीज को कर लेते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आंसर से रिलेटेड था, that how do parents find out time to care for themselves? बिकॉज आई थिंक कुछ भी डिलीवर करने से पहले, अब बीइंग अ टीचर, जैसे मैंने भी टीचिंग की है, तो हमें होता है कि पहले जो ट्रेनिंग्स में हमने देखा है कि सबसे पहले तो खुद एनर्जेटिक रहें, क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना एनर्जेटिक होके देंगे तो बच्चे और पूरा दिन एनर्जेटिक होके गुजरेगा। तो यही चीज पेरेंटिंग में आ जाती है कि आप वो चीज कन्वर्ट बच्चों में तब करेंगे जब आप खुद पॉजिटिव और खुद इस तरीके से लाइवली और माइंडफुल रहेंगे। सो जस्ट गिव सम टिप्स टू द पेरेंट्स हाउ टू बी लाइक दैट। यार अगर आप मुझे इजाजत दें फलक, तो आई वुड लाइक टू ट्राई एंड क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फॉर अस टुगेदर एज एक विजडम प्लेटफॉर्म लर्निंग लैब के। जब माइंडफुलनेस की हम बात कर रहे हैं और जब हम माइंडफुल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक म्यान में दो तलवारों वाली बात है, बिकॉज पेरेंटिंग इटसेल्फ बीइंग सो चैलेंजिंग, उसके साथ अगर मैं कह दूं, क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूं टू चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह, माइंडफुली पेरेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम जहां आप कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि जी माइंडफुल सेल्फ एम्पैथी को कहते हैं, सेल्फ कंपैशन, जो चीज मिसिंग है हम सब में, मेरे में भी है, अभी भी है, और हम सब यही करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि अगर, और ये हमारा कल्चर भी है वैसे, आई होप द कम्युनिटी डजंट माइंड मी स्पीकिंग अबाउट इट, हमारे अगर पेरेंट्स, खासतौर पे मदर्स, अपने लिए टाइम निकालना शुरू करती हैं तो वो सेल्फिश वाली कैटेगरी में डाल दी जाती हैं। हालांकि वो सेल्फिश एक्ट्स नहीं होते। समझने वाली बात ये है कि सेल्फ कंपैशन एक चीज होती है जो हमें सिखाई नहीं जाती बचपन से, हमें सिखाया जाता है टू बी अ पीपल्स प्लीजर, और कम्युनिटी के अंदर भी वो ही माँ एक्सेप्टेबल हाई प्लेस की जाती है, हाई स्कूल पे उसको क्रेडिट और मेडल्स मिलते हैं घर वालों से, जबकि ये पता होता है कि ये वो है जिसने अपने आप को मिटा के बच्चों को या घर को, हालांकि I'm not saying, with all due respect to everybody's character and everybody's role in the society, हमें अब नहीं समझेंगे, इतने सालों बाद तो कब समझेंगे यार, अगर सेल्फ कंपैशन वो माँ ही अपने लिए नहीं कर पाती फलक, या वो फादर ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ कंपैशन अपने लिए, वो ज्यादा बेहतर, और यहाँ से सेन कैसे रहेगा अपने बच्चों के लिए? हाउ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, हम सेन कैसे रहेंगे? आई थिंक हिफ्जा एंड नीलमा, व्हाट डू यू बोथ थिंक, कि क्या आप लोग अग्री कर रहे हैं इस पैटर्न से कि सेल्फ कंपैशन जहां आता है नहीं कर रहे, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू आवर चिल्ड्रन? सिर्फ ये होता है कि आप लोग नोटिस करते होंगे और कम्युनिटी मेंबर्स भी नोटिस करते होंगे कि we either have depression modes और we have severe anxiety। पेरेंट्स का जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो एंजाइटी होता है, और एक्सप्लोजन कौन करता है? एक्सप्लोजन मैं भी करती हूँ। इट इज bursting out on relationships, bursting out like a bomb on your children, और उसमें बहुत दफा बच्चों की गलती भी नहीं है ना। तो कनेक्टेड फलक, ये सब चीज कनेक्टेड है। और आपने बहुत प्यारी बात की कि जब तक हम सेल्फ कंपैशन को सेल्फिशनेस वाले और भूल जाएं कि कोई अगर आपको कह भी रहा है, मैं तो अब ये कहना शुरू हो गई हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप सेल्फिश का वर्ड ढूंढने जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो हमारी डिक्शनरियों में सेल्फिश होना भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट बीइंग सेल्फ कंपैशनेट,
give yourself the chance to be alive and also sane for a longer period of time for your children, Baba. Otherwise, parenting तो क्या, mindful तो क्या, आप खुद ही wellness के मोड में नहीं रह सकते. ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चे को 15 साल तक का देख सकेंगे. 16वें साल में जब वो बच्चा लगेगा तो या तो बाप की एंजाइटी का लेवल फट चुका होगा या माँ बेचारी ऐसी हो चुकी होगी कि वो हर चीज में से चीखेगी. तो इट्स ग्रूसम. आपका सवाल बहुत अच्छा है. सेल्फ कंपैशन इज द फर्स्ट की. सो जितनी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई नो कि हम लोग का कल्चर ऐसा है कि जब तक हमारे आसपास के लोग खुश रहते हैं हम भी तभी खुश रहते हैं. जब हमारे बच्चे हंसते हैं तो हम हंसते हैं. जब हमारे हस्बैंड्स अपसेट हो या मदर्स अपसेट हो या फादर्स अपसेट हो तो हम भी अपसेट हो जाते हैं. लेकिन यहाँ प्लीज मेरी बात को गलत मत कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि हम दूसरों को कंसिडर ना करें. एम्पैथी बहुत जरूरी है, लेकिन द वर्क विल स्टार्ट विद यू. यू डोंट वर्क, इट्स वेरी हार्ड. Yeah, undoubtedly. That's true. Very well explained, Zohra. Acha, here I want Hifza to add any question if you want to ask, as I know that you have prepared certain questions. Anything you want to ask? Yeah, definitely. My first question is how to deal with a child's tantrum. Can you hear me? Yeah. Yes, I can. Yeah. क्योंकि like being alone over here, आप बच्चों को जो है एक टाइम आता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते. ठीक है ना. लाइक जैसे कि पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, जैसे सिचुएशन चल रही है, एवरीवन इज एट होम. तो बच्चा जो है वो आपसे बोलता है कि आप बाहर जाएं. ठीक है ना. आप उनको एक्टिविटीज दें. तो अगर इट समटाइम इट्स इम्पॉसिबल टू टेक देम आउट. ठीक है. तो जब आप नहीं लेके जा सकते तो फिर बच्चा जो है ना वो टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाता है. तो हाउ टू डील विद इट? Acha, thank you so much for posing the question, and I hope I'm able to add value and give you perspective regarding it. एक चीज. दूसरी चीज ये कि सबसे पहले तो हम सबको मिलके ये समझना है, and I think this is a step forward for all of us as mothers, कि जब हम ऐसे किसी सीरीज का या प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हैं, let us all be honest to ourselves. हमने कभी माइंडफुलनेस खुद प्रैक्टिस नहीं किया. मैं खुद हाथ ऊपर करती हूँ, मैंने कभी नहीं किया था जब तक कि मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा या नहीं समझा. तो लाइकवाइज हमारे बच्चे जिन जिन एजेस तक पहुंच चुके हैं वो इस चीज की एब्सेंटिज्म इसके ना होते हुए पहुंचे हैं ना इन एजेस के अंदर. ठीक है. और इसी के साथ इनकी एक्शंस भी इवॉल्व किए हैं ना, जो आप जैसे बता रहे हो. यही होता है कि ये टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. इनको पता है कि माँ बाप जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं. बहुत दफा तो ये हो रहा है हिफ्जा, जो कि आप भी अग्री करोगे, शायद नीलमा भी अग्री करे, कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज को लेके रोते रहते हैं कि हमारे बच्चे फोन से निकलते नहीं है. करूंगी कितनी दफा अपने बच्चे का टैंट्रम कंट्रोल करने के लिए उसको फोन दे दिया जाता है. बिल्कुल करते हैं ना. तो यार सबसे पहले तो एक स्टेप वन करते हैं, एक कन्फेशन अच्छा सा, कि हमने इनको वो एनवायरनमेंट अभी तक नहीं दिया है. ठीक है ना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू नीड टू डू इज द फैक्ट दैट टुडे माइट बी इंशाल्लाह द स्टार्टिंग पॉइंट. तो हिफ्जा इसका मतलब है कि जरा चैलेंज थोड़ा टफर है. ठीक है. बिकॉज दे डोंट नो अबाउट माइंडफुलनेस, they haven't seen you making or our family members or their family members making a mindful decision. तो पहली चीज तो ये हो गई कि बड़ी एलियन सी चीज होगी उनके लिए. और जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं आता हिफ्जा कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के उसके साथ एक सीरियस डिस्कशन करने के. अब ये सीरियस डिस्कशन में भी बड़े सवाल होते हैं हिफ्जा और नीलमा, के बच्चे का तो अटेंशन स्पैन ही इतना छोटा होता है अपने माँ बाप की बात के लिए कि गोल्ड फिश से भी कम है. मुझे लगता है 5 सेकंड का स्पैन होता है इन लोगों का. ये लोग 5 सेकंड्स कोई बात सुनते हैं और उसके बाद इट्स गॉन. ऐसे ही होता है ना. तो हिफ्जा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज के जब आपको लगे ना कि आपके बच्चे किसी फ्रेंडली मूड में है या ऐसे मूड में है जिस टाइम पे वो आपके साथ खुश है या प्लेजेंट फील कर रहे हैं, उनके साथ ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करें और उनको
ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइंडफुलनेस है ना, ये इस तरह से इंट्रोड्यूस करा है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू रीडिफाइन माई रिलेशनशिप विद माई 13-year-old daughter after I learned these practices and I put them into और वो अपनी टीनेजर्स में है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि टीनेज जो बच्चे होते हैं, जो 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं, इन लोगों का एक अलग जोन है। और आप जो कह रही हैं कि जब बच्चे कहते हैं आप चले जाएं और हमें हमारा स्पेस चाहिए, हिफ्जा कितना हो गया ना, बच्चों को स्पेस चाहिए आजकल, छोटे से छोटे बच्चे को छोड़ दे मुझे, लीव मी अलोन, यू नो। सो पहला स्टेप तो हिफ्जा, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जिस वक्त ये अच्छे मूड में है ना, इनके साथ आप बैठो तो इनको ये बताओ कि मैं खुद अपने ऊपर रख लो बात, कि भाई मैं खुद इतना, आई थिंक मैं बहुत ज्यादा आप लोगों पे चीखने लगे, आपको नहीं लग रहा मैं बहुत ज्यादा अंडी हो जाती, लगता है ऐसे बच्चे कहते हैं हाँ वाकई, हाँ पता नहीं क्या हो गया आपको आजकल यार, मैं लग रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो try to bring them into a shell where they feel that you are introducing mindfulness for your benefit, for your health first। तो उनको पहले बताएं कि मैं खुद जो हूँ ये एक्सप्लोर कर रही हूँ बेटा, और मुझे पता चला है कि माइंडफुलनेस ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट है, और ये वो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस टू देम माइंडफुलनेस है क्या, और इससे उनको क्या फायदे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जब उनको ये एहसास हो जाता है ना कि अगर आपका पेरेंट जो है वो माइंडफुल रहेगा, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी मेजॉरिटी बातें मान ली जाए। True. Yeah, agree. So we have to help bring the kids into the situation। हम लोग जो ये क्विक फिक्स ब्लू, क्योंकि हम लोग के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई एम श्योर नीलमा भी एग्री करेगी, आप सब करोगे कि हम लोग इतने एक सिस्टम में डेक्ड अप है, चाहे आप यूके में रह रहे हो या हम यहाँ रह रहे हैं, सबका एक सिस्टम है ना। और कोविड के लॉकडाउन के बाद तो यार एवरीबडी इज बीन गोइंग थ्रू सो मच। सो इस सब के साथ, इस इमोशनल टर्फ के साथ हम लोग कितनी दफा बैठते हैं हिफ्जा अपने बच्चे से पूछने के लिए, यार इज समथिंग डिस्टर्बिंग यू। हम ज्यादातर सिर्फ शन कर देते हैं हिफ्जा, टू मेक थिंग्स काम डाउन, कहते हैं गो इनटू योर रूम, या हम कह देते हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, हम बात नहीं करेंगे। ये वो चीजें हैं माइंडफुलनेस की तरफ तो कहीं नहीं लेके जा रही ना। पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मैं कुछ टिप्स ये भी करूंगी इंशाल्लाह हिफ्जा और नीलमा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मैं फलक के साथ शेयर करूंगी, सो दैट शी कैन शेयर दोस टिप्स विद यू। मे बी यू कैन यूज देम एज अ मैनुअल, कि हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल फलक इतना नहीं होगा कि मैं सारे बता पाऊँ, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि माइंडफुलनेस को इंट्रोड्यूस कर दें एज समथिंग दैट विल हेल्प यू एज अ मदर एंड ऑल्सो देम, कि उनको आप ये बता सकते हो कि अम्मा का मूड इतना अच्छा रहेगा ना अगर हम लोग माइंडफुली आपस में चलेंगे, कि तुम लोग की आधे से ज्यादा बातें मैं मान लूं, they will be attracted to the idea, try it। I think it's really important कि हम एक balance strike करें between strictness, between what you want and what your child wants। और मैंने जैसे अपनी जो जर्नी है अपने फर्स्ट बेटे के बाद से, I am a person who suffers from short temper प्रॉब्लम एट टाइम्स, लेकिन आई हैव लर्न कि एक ही तरह से आप जैसे जब उसके बाद फर्स्ट के बाद जब ट्विंस आए मेरे पास, अब फर्स्ट इज 12, जो मेरा बड़ा बेटा है ही इज 12, और उसके बाद ट्विंस माशाल्लाह दे आर 8, तो फिर आई रियलाइज कि वो खिजर के साथ, जो एल्डर वन के साथ जो चीज़ चल जाती थी, अब वो माशाल्लाह 3 के साथ नहीं चलेगी। यू नो देयर आर अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे अब मुझे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टडीज़ हो चाहे वो जनरल हो। तो मैंने थोड़ा सा अपने टेम्पर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, बिकॉज यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि हर चीज़ दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर किड आप नहीं हर वक्त वो आपको मिल सकती। और सिमिलरली कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस हम रखें बिटवीन स्ट्रिक्टनेस भी और लाड भी। ऑब्वियसली दे आर माई वर्ल्ड एंड हर मदर का यही होता है, तो येस आई वॉन्ट टू पैम्पर देम, बट उसके साथ थोड़ी सी थोड़ी सी देयर इज दिस तमीज़दारी दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो वो आई थिंक वो बैलेंस जहाँ पे हम अच्छे से मेंटेन अगर करने लगे तो वो फिर आई थिंक दिस इज गुड। वो और एक चीज और, बिल्कुल सॉरी, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको मतलब मैं ऐड करना चाहूंगी, जो शुरू में हमने बात की कि मदर की सैनिटी
जो है ना वो मेंटेन रहनी बहुत ज़रूरी है। I did my MBA way back in 2008. Then शादी के बाद I did some freelance stuff, but घर में ही थी. But then 4 years back, I talked to my husband. I told him कि यार now I need to do something on my own again. ठीक है, I do not want to go for a 9 to 5 job, but मैं teaching करना चाहती हूँ. Teaching is यहाँ पे if you are working as a visiting faculty तो आपके hours बहुत कम होते हैं. You have something of your own, but at the same time you can stay with your kids also. तो वो एक पिछले 4 years की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये जो मैं बता रही हूँ कि टेंट्रम को कंट्रोल करना सीखा, बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग एडिशनल टू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई ऑलरेडी हैड। तो मैंने सीखा कि वो यार अपने लिए कुछ करना, एंड यस सोसाइटी माइट टर्म यू एज अ सेल्फिश पर्सन, बट दैट्स फाइन, लेट इट बी। चाहे आप कोई गेम खेलें, there are times when I play very childish games and people judge me, but I say this is for my own sanity, whether you're watching a show or whether you're playing a game or you are doing some hobby, whatever, baking, some females do it, but you should do something that actually does help you यहाँ से। तो वो जो ये जो बैलेंस स्ट्राइक की बात कर रही हूँ मैं, मुझे लगता है कि जब आपकी सैनिटी होती है, खुश होते हैं अपने आप से, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी इन्वायरमेंट में वो आप वो खुशी को वो कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक और चीज भी पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, ये कि जहाँ पेरेंटल वेलनेस की बात आती है या पेरेंटल टैक्टिक्स की बात आती है, या जब व्हेन वी लुक एट द फैक्ट दैट पेरेंट्स आर गेटिंग इन टच विद, आई डू अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रोग्राम्स आल्सो जो इंडिविजुअल होते हैं विद सो मेनी चिल्ड्रन, हमारे कल्चर में बहुत कम है that you would find a father being concerned about. मैं इस चीज को यहाँ इसलिए रेज करना चाहती हूँ एज अ पॉइंट, और मैं ये हमेशा करती हूँ जब मैं पेरेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स की बात करती हूँ कि मैं इस चीज को बहुत समझती हूँ, और मुझे ये एंड आई एम श्योर कि जितनी वाइफ्स हैं वो सब इस चीज को समझती हैं कि जितना माँ का जरूरी है इमोशनली अपने औलाद से जुड़ना, उतना ही जरूरी उसके अब्बा का भी जरूरी है जुड़ना। नाउ अब यहाँ पे अगेन बात यही है कि ये नहीं मैं कह रही दैट फादर्स आर नॉट वांटिंग टू डू इट, दे आर जस्ट सो डेक्ड अप विद टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुटिंग द ब्रेड ऑन द टेबल, खाना पीना, हमारे मेंटेनेंस, फैमिली प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा होती हैं फादर्स के ऊपर कि वो फिर ना चाहते हुए उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कल्चर में माओ के ऊपर छोड़ देनी पड़ती है, वो छूट जाती है एक तरीके से। जो इमोशनल बॉन्ड होता है, वो जो इमोशनल एक अटैचमेंट होती है कि जिसमें डिस्कशन होती है या बातचीत होती है, वो उधर से वो वहां पे एक वॉल सी बिल्ड हो जाती है। तो माइंडफुलनेस जो है हिफ्जा, नीलमा और फलक ये हमें सिखाती है कि किस तरह आप कोशिश करके अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस एक्टिविटी या इस थॉट के थ्रू दोबारा इनटू द प्रोसेस। यहाँ पे मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट होगी जो कि मैं कोशिश करती हूँ विद माय हस्बैंड, बिकॉज ही इज आल्सो फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, वी ऑल कम फ्रॉम द सेम कल्चर, जहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे होते हैं, चाहे हम मुल्क के अंदर रहें या मुल्क से बाहर रहें, जॉइंट फैमिली, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखना, हर चीज हमारी साथ साथ चलती है। चाहे जैसे हिफ्जा बाहर रह रही है, आई एम श्योर वो अपने इन लॉ से उतनी कनेक्टेड है अपने हस्बैंड के साथ जितनी हम लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सॉइल पे रह रहे हैं। तो सब चीज से देखते हुए मेरी एक और बड़ी रिक्वेस्ट रहती है, और आप दोनों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू एनीबॉडी हु इज लिसनिंग, कि ये जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है, इसको अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पार्टनर्स को डिस्कस करके उनसे इस चीज के बारे में जरूर जिक्र करें, क्योंकि सना जैसे कमेंट कर रही है, इट ऑलवेज हैपेंस, अगर हमारे बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होती है या हमारा मिसबिहेव करता है बच्चा, उस बात माँ पे ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उसके अंदर वो बच्चा पिछले एक हफ्ते में अपने बाबा के साथ बैठ के इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी बात कर सका है या नहीं, वो कोई नहीं देख पाता या समझ पाता। बट आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। थैंक यू लर्निंग लैब फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिटिंग टुगेदर एंड स्पीकिंग अबाउट इट, कि हम लोग इस चीज को अपने पार्टनर्स के साथ एजेंडा बना के डिस्कस करें विदाउट द चिल्ड्रन बीइंग देयर, कि भाई हम दोनों, आप भी उतना ही चाहते हैं बच्चों की बेहतरी, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं।
व्हाट पॉजिटिव कैन वी डू। ये आपका माइंडफुलनेस को लेके पहला स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन। बच्चों को मैसेज क्या चला जाएगा ऑटोमेटिक आप लोगों के कहे बगैर, वो एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ है, यू नो दिस गाइस हैव गॉट इट टुगेदर। ये किसी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे अम्मा को दोनों काम कर रहे हैं, इट बिकम्स एन ऑटोमेटेड पॉजिटिव सिचुएशन। कि जब बच्चे को सिग्नल जा रहा है कि वो दो एक्शन एपिटोम्स, जो एक्शन फिगर है उसकी लाइफ में, जो अब तक उसको एक नजर आ रहा था खाली अम्मा भाग रही हैं, हिफ्जा का भी स्केड्यूल इतना क्रेजी है, नीलमा का भी क्रेजी है, हम काम भी कर रहे हैं, हम घर भी देख रहे हैं, अब उसमें जब उसको वो दूसरे वाले यू नो अपने अब्बा दिखेंगे, then they know it's serious business. That's how our culture and community is. तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि हम सब कोशिश करें कि हम अपने पार्टनर्स को अपने इस माइंडफुलनेस की जर्नी में इंक्लूड करें फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट, डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आई कि ये जो रिचुअल है माइंडफुलनेस का और ग्रैटिट्यूड का, ये हम घर में कैसे करें, वेरी बेसिक कैसे शुरू करें, जो आपने मुझे बता दिया, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ अपने घर में देखी कि हमारा एक बेड टाइम होता है जिसमें पूरी फैमिली होती थी और हम लोग रोज की बातें करते थे। फिर हमें पता चलता था, इससे मदर के दिमाग में एक बात आ जाती थी कि भाई आज उसने ये गलत कर दी, ये नहीं कि उसी वक्त पॉइंट आउट किया, वो नोट कर लेती थी, सेम एज माई बाबा, एज ही इज नॉट विद अस नाउ, बट ये एक रिचुअल था घर में। तो मुझे लगता है वो भी एट द एंड ऑफ द डे या मिड ऑफ द डे कहीं पे भी ये चीज भी इस तरीके से माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड का हिस्सा थी कि वो दोनों बिल्कुल एक हैं। हम दोनों ऐसे बिल्कुल एडवांटेज नहीं ले सकते कि किसी एक के पास जाएंगे तो दूसरे से बात मनवा लेंगे, दूसरे के पास जाएंगे तो एक से बात मनवा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, तो ये वाली चीज जो है इसको एक रिचुअल घर में कैसे बनाए, बिकॉज एज यू सेड दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पेरेंटिंग एंड फॉर किड्स एज वेल। तो प्लीज एक छोटा सा कुछ एग्जांपल जो बच्चे एक्चुअली पेरेंट्स कर सकें। जरूर, मैं उसका भी देती हूँ, और मैं उस बात पे भी आना चाहूंगी कि जहाँ निक्मा और हिफ्जा दोनों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, इट्स राइटली सेड, जैसे निक्मा बोल रही थी कि फ्रॉम हर 12-year-old द चिल्ड्रन हु आर बोर्न टुडे आर, हमारा ये बहुत समझना जरूरी है कि देयर आर द साइंटिस्ट्स हु हैव बीन वर्किंग ऑन recognizing a person's character, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने सालों लगाए समझने के लिए people who are from different generations act and react and respond differently. आज का बच्चा अगर हम 500 साल पहले की तरह हैंडल करने की कोशिश करें, या हम उस बच्चे को उस तरह ट्रेन करने की कोशिश करें जैसे पहले कहा जाता था कि माँ की आंख का इशारा होता था और बच्चा चू नहीं करता था, चू, और हिलता नहीं था। आज का बच्चा हिल के सामान हिला के अपनी जगह पे रख के वापस आ जाएगा और आपको कहेगा अम्मा आई हैव डन माय जॉब, और आई टेल यू व्हाई आई हैव डन इट। देयर थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है एज एडल्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में, घरों के अंदर एक दूसरे के रोल्स के अंदर के जी हमें अगला समझे, बहुत जरूरी चीज है कि हम ये समझें our kids are not born in our age, so they are not programmed to follow instructions like we did. So ये चीज भी लिस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं बच्चों को इतनी हम छूट दे दें या उनको हम रूल्स नहीं बताएं या हम उनको डिसिप्लिन नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम बच्चे को सिर्फ इतना समझा सकें या बता सकें कि फाइन, we know that we are going to treat you in a little bit different way. Why? Because we know, we understand you, that you don't come from our position. लेकिन at the same time, जैसे आपने कहा कि gratitude को और mindfulness को हम अब एक continuous line कैसे बना सकते हैं। फलक ये जो छोटी छोटी चीजें पहले होती थी ना, जहाँ फैमिली जुड़ के बैठती थी, जो soft points थे हमारे दिन के, sitting at the dinner table together, हाँ, sitting with each other at Amma Baba's bed before we went into our rooms. वो चीजें अब आप लोग भी करेंगे कि ये चीजें डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई। डिनर टाइम सबका डिफरेंट हो गया है क्योंकि हस्बैंड्स यूजुअली लेट हो जाते हैं, बेचारे ओवर टाइम काम कर रहे होते हैं, औरतें भी अगर काम भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, तो उनको ये होता है कि जी उन्होंने I also for years have run by the clock. I knew my child had to be in bed by 10:30. जब मैं घर के अंदर आती थी काम से तो I was like a
क्रेजी रोबोट, और मैं हर वक्त उसको बोलती रहती जल्दी चीज टाइम पे करो, क्योंकि मुझे पता था मेरी घड़ी में टाइम नहीं, until the time that I put her to bed. So ये सारी चीजों को सामने रखते हुए माइंडफुली हमें एज अ पेरेंट फलक ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जब रूल्स और गाइडलाइंस घर के रीडिफाइन करने की कोशिश करें फ्रेंडली तरीके से इन बच्चों के साथ, तो ये मेक श्योर कि खाने की टेबल पे फोन नहीं लेकर आना अलाउड है, तो बाबा का भी फोन सिर्फ खाने की मेज पे ना, ओनली दैट लिटिल बिट, ओनली दिस लिटिल ट्वीक। अम्मा का भी फोन कॉल, अगर आपकी अम्मी भी फोन करती हैं, आपके अब्बा फोन करते हैं, आपके मैके से फोन आ गए, डोंट टेक योर फोन कॉल, टेल देम आई कॉल यू बैक, इट इज आवर डिनर टाइम। ये वो एक्शंस हैं जो हम अगर सिर्फ माइंडफुल कोशिश करें, देन अगेन मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती और ना ही आप लोगों को करना चाहिए कि ये हम ओवरनाइट कर लेंगे। छोटा छोटा अपना थोड़ी थोड़ी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश करें। रात में एक प्रैक्टिस जो कि हमारी यूजुअल होती है कि मुस्लिम घरों में भी होती है और जगहों पे भी, से योर प्रेयर बिफोर यू गो टू बेड। तो जिस वक्त सो रहे हैं, जिस वक्त वो अपने रिलैक्स मोड में है, वो अगर फोन में रहना चाहते हैं या कोई चीज देखना भी चाहते हैं, मेक श्योर यू आर द लास्ट पर्सन, आइदर यू और योर हस्बैंड, द मदर और द फादर, कोई भी एक, अगर कोई एक काम की वजह से बिजी है, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा हो टू टक देम इनटू बेड। ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह हमारे इस हसल बसल का जो टाइम है ना, हम टेक्नोलॉजी से इन बच्चों से नहीं ले सकते, ये प्लीज समझें। और ये मैंने भी समझ के एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि पहले मेरी जंग ये होती थी कि कैसे इनको दूर रखना है, कम स्क्रीन टाइम, कम फोन टाइम, लेसर गेम टाइम, यही होता है ना। हिफ्जा और नीलमा हम इसी कोशिश में लगे होते हैं इनका स्क्रीन टाइम कैसे कम करेंगे। इनका कम नहीं कर सकते नीलमा और हिफ्जा, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी से सराउंडेड हैं। सोचो हम लोगों के टाइम पे मोबाइल फोन तक नहीं था, और यहाँ पे जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इन्होंने घर के अंदर देखा है कि इनके दादा दादी, नाना नानी, हर इंसान के हाथ में एक अलग फोन और टेक्नोलॉजी है। तो हिफ्जा, बच्चे उस इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं तुम स्क्रीन टाइम नहीं कर सकते। वो बच्चे को लगता है कि आप उसको जेल टाइम दे रहे हैं, तो वो तो यही सोचता है कि भाई आप लोग तो अपना सारा स्क्रीन टाइम कर लेते हैं, ऑल द टाइम यूर ऑन द फोन, रात में यूर वॉचिंग ड्रामाज ऑन यूट्यूब। अम्मा आप मुझे बोल रही हैं कि मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। ये भी बड़ा ये रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है यार, कि हमारे बच्चों का पर्सनालिटी कैसा है, उनका थोड़ा सा हमें एक्चुअलाइज करने की जरूरत है, कि क्योंकि ये बच्चे देखम, और हजरत अली का कितना प्यारा कॉल है ना, कि अपने बच्चे की तरबियत अपने वक्तों के हिसाब से ना करें, क्योंकि ये उन वक्तों के लिए है ही नहीं, वो आज से आने वाली दुनिया के लिए पैदा किए गए हैं। जब तक ये बड़े होंगे सिस्टम और दुनिया कुछ और होगी, है ना। तो ओनली सजेस्ट कि इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा माइंडफुली लेके, जो छोटे छोटे टाइम है ना, अकेले स्पेस चाहिए होता है ना, उस वक्त दे दें इनको स्पेस, टेक ऑल द स्पेस यू वांट। लेकिन जिस वक्त हम डिनर पे बैठते हैं ना, बेटा आई वॉन्ट योर ब्रेन टू बी विद अस टुगेदर, उनके बारे में बात करेंगे, लेट्स जस्ट माइंडफुली ट्राई टू सी हम ये 10-15 मिनट खाने के टाइम पे कैसे कर सकते हैं। बाकी टाइम पे करो जो करना है, बट जब हमारा टाइम होगा, प्रॉमिस नॉट टू टच द स्क्रीन देन इन बिटवीन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बाय द वे। मैं सोच रही थी कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, यहाँ नीचे अली मुर्तजा जो है वो हमारे साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट दीज थिंग्स और वी डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इट ऑन आवर वेबिनार डेफिनेटली। तो आप उसको बारी बारी से कमेंट्स में लिख सकते हैं, यू कैन शेयर योर थिंग्स। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स हिफ्जा, anything you want to add on, any question you want to ask? Of course, yeah. How moms can stay calm while feeding their child, I mean fussy child. I struggle a lot. Very relevant. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करती हूँ, जब माएँ मुझसे बात करती तो मैं उनको कहती हूँ, आप सोचें, आफ्टर हैविंग बिस्मिल्लाह having the opportunity of studying or understanding mind sciences, उसके बावजूद I go through phases, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं ये, कि जब बच्चों का या तो फीडिंग टाइम होता है या जो बाकी चीजें होती हैं, हमारा अपना कामनेस जो है
वो सिर्फ, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब एंजाइटी की अभी बात हो रही थी और नीलमा अपना बता रही थी, मैंने इसलिए हाथ खड़े किए थे कि मैं अभी भी एट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम द वर्स्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी। मुझे एंजाइटी यूं आती है, इसलिए कि मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि शायद हम रिलेट कर सके। मैं वो इंसान हूँ जो एक कमरे में आता है और मैं वाइब से पिक कर लेती हूँ, अगर कोई नेगेटिव वाइब कमरे में होती है ना, वो मुझे यहाँ हिट करती है इधर। आई एम द फर्स्ट वन टू पिक अप अ नेगेटिव वाइब इन द रूम। होता है ना ऐसे हिफ्जा और नीलमा, किसी दूसरे का मूड खराब होता है लेकिन हमें पहले पता चल जाता है। हिफ्जा, पहली चीज ये है, फर्स्ट स्टेप, कि हम लोगों की जो ओवर थिंकिंग वाला पॉइंट है ना, जो ओवर सेंसिटिव है, हम यहाँ से और यहाँ से सोच चले जा रहे, सोच चले जा रहे, सोच चले जा रहे, खत्म ही नहीं होता। वी डोंट ब्रेक इट। हम एक वक्त की बात को दूसरी वक्त तक ब्रेक ही नहीं करते। अगर रात में सोने से पहले हमारे साथ कोई हिफ्जा घर में कोई इवेंट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, सुबह उठने के बाद पहले वही चीज याद आती है ना। बिल्कुल यही होता है ना, where we put ourselves to sleep। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जिस ब्रेन कंडीशन में हम सोते हैं फलक, हम उसी कंडीशन के साथ उठते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और औरतों का एक और डिफॉल्ट ये है कि क्योंकि ओवर थिंकिंग में माशाल्लाह हम सब ने गोल्ड मेडल लिए हुए, तो हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम लोगों का काम रहना हिफ्जा इम्पॉसिबल हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड सजेस्ट कि ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न हिफ्जा अब जब आए ना, फ्रॉम वन एपिसोड टू दी अदर, बच्चे ने एक वक्त नहीं खाया ना, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जब उसको खिलाने आप बैठ रहे हैं हिफ्जा, अगर आप उसको यही कहते रहेंगे, सुबह भी नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सुबह से मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे इतने सारे काम, बच्चा खाना नहीं खाएगा। आज का बच्चा खाना नहीं खाएगा। वो आपसे ये सवाल पूछेगा, आप मुझे सुनाने बैठी हैं क्या खाना, राइट, ये रिस्पॉन्स है आजकल बच्चों का। सो हिफ्जा, नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा सा अपने आप को और जो है वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए, सबसे पहले तो जो मैं अब करती हूँ ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए, वो ये, आई टेल माई सेल्फ टू शट अप इनसाइड, या इन द ब्रेन। हमारी जो, हमें लगता है ये हमारे दिल की आवाज है जो हमें बता रही है, हमारी इनर वॉइस है जो हमें याद दिला रही है, कल ये हुआ था, परसों हमारे रिश्तेदार ने फोन पे ये कहा था, तरसों मेरे ससुराल से कोई आया था, उसने हमें ये कहा था। कुछ नहीं है ऐसा, इट डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले तो हमें अपनी ओवर थिंकिंग खत्म करना है। और दूसरी चीज हिफ्जा ये कि ट्राई व्हेनेवर यू वांट टू काम डाउन माय डियर, फॉर विद द फैक्ट दैट यू हैव एंजाइटी, सिर्फ काम डाउन हो जाओ एंड मेक योरसेल्फ ब्रीथ खामोशी से, बिल्कुल स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, मूव अवे फ्रॉम द काम दैट यू आर डूइंग, sit for 5 minutes, sit down, drink a glass of water, take a deep breath, don't react हिफ्जा। हम इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को बार बार इंक्लूड कर रही हूँ, मैं ऐसी कोई महान नहीं हो गई कि मैं एक ऐसी कोई जबरदस्त कोई योगी मास्टर हो गई हूँ कि मुझे समझ आ जाता है कि क्या नहीं होता, मेरे साथ भी यही होता है। बट इससे सिर्फ मुझे एहसास, ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो मैं अपने इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स के साथ बैठती हूँ, वो सिर्फ मुझे याद दिला देता है कि यार कम बैक। सो अब से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, बन जाओ वो वॉरियर अपने लिए, कि जब आपको लगे कि आप सिचुएशन के साथ बह गए और रिएक्ट करने के मूड में है हिफ्जा, चुप कर जाए उसी वक्त, डोंट स्पीक देन, जस्ट ट्राई टू ब्रीथ एंड काम डाउन। हम हर चीज को हिफ्जा रिएक्शन में लेते हैं। बच्चे ने कुछ कहा है, हमें लगता है हमें उसी वक्त बच्चे को जवाब देना है। बच्चे ने अगर हमारे साथ बदतमीजी की है या डिसरिस्पेक्ट किया है, हमें लगता है हमें उसको उसी वक्त ही सबक सिखाना है। अभी आज का बच्चा वो सबक नहीं सीखेगा अगर हम उसको समझाए बगैर सजा दे देंगे। आज का बच्चा फर्क है। आज के बच्चे को इंटरनेट पे हर चीज का रीजन 200 मिल जाएगा। उसको यूट्यूब करेगा ना, उसको 200 रीजंस मिल जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के जो उसके लाइफ में है। फिर बार बार वो चीज हमारे दिमाग में आती है ना नीलमा और हिफ्जा और फलक, कि हमें अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनना है।
आजकल मुझे Yeah. लगता है सबसे बड़ा चैलेंज वो बन गया है कि आजकल की इस ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन दुनिया में मैं अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड, मैं जूझती हूँ इसके साथ कितनी दफा। हाउ डू आई बिकम माई किड्स बेस्ट फ्रेंड अगेन? हाउ डज माई चाइल्ड ग्रो टू अंडरस्टैंड कि भैया मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं सही कर रही हूँ। वो तभी Yeah, आपकी right. बात सुनेगा हिफ्जा जब आप काम डाउन हो जाएंगे और आप रिएक्ट नहीं करेंगे उसकी बात। आप उसको ये कह दें, अगर आपको लगता है आपका बच्चा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसको बोले फाइन, यू डोंट वांट टू हैव फूड, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन सिट क्वाइटली एट द डिनर टेबल, यू कांट लीव द डिनर टेबल अगर आपको खाना नहीं खाना, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, नहीं खाना तो मत खाओ, पर खाना इसके बाद होगा नहीं बिकॉज किचन से तो मैं जा चुकी होंगी, बेटा मैं सो जाऊँ। कितनी देर भूखा रहेगा हिफ्जा? दूसरे टाइम खुद तुमको समझ जाएगा। वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, रहेगी वही हिफ्जा, लेकिन करनी डिफरेंट तरीके से पड़ेगी, क्योंकि आज के बच्चे उस तरह नहीं हैंडल हो सकते जितना हम पहले करते थे जाने, या जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें एक आवाज लगाते थे, अब्बा आएंगे तो देखना, बस बच्चे डरते हैं। बिल्कुल ना। सब शट डाउन था ना। आई स्टिल रिमेम्बर कि we even now अगर कभी अम्मी ये कह दें, my mother lives in the US, कभी अम्मी ये कह दें कि अच्छा मुझे लग रहा है मैं बाबा से तुम्हारे डिस्कस कर लूं, हम लोग की सांस रुक जाती है हालांकि कि अगर वो कोई ऐसी चीज है जो बाबा से बात करने वाली नहीं है या वो अपसेट हो जाएंगे। We are wired differently. So एक तो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट को इंडोर्स करें, लेकिन समझें और एट द सेम टाइम कुछ चीजें समझाएं भी। और हिफ्जा, रिएक्ट करने के बजाय एक्शन लो। थोड़ा सा बच्चे शुरू में घबराएंगे, कहेंगे अरे हमारी अम्मा को हुआ क्या है, वैसे हमें तो लग रहा था कि सजा अभी की अभी 5 मिनट में मिल जाएगी, you know, change, try to change the pattern should help Inshallah. Now I really want to come towards Nilma Faraz. If you want to add on something or if you have any questions. अच्छा नीचे क्वेश्चन पहले आप नीलमा फराज से ले लेते हैं। जी जी हाँ, मैंने अभी इसमें कमेंट्स भी देखे हैं सना के भी, और तो आई वुड एग्री जैसे कि सना ने कहा कि खासतौर पे शायद हिफ्जा इस चीज़ को ना फील करती हो या उनके साथ ना होता हो। हम जो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक जनरल है कि क्योंकि हम कभी कभी जॉइंट फैमिलीज में रह रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत एक ये वाली चीज़ होती है कि वो अगर बात हुई कि अगर कोई अच्छा है तो उसका क्रेडिट अम्मा को मिले ना मिले, इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो उसका ब्लेम ज़रूर अम्मा को वो मिल जाता है। तो यस, उसमें एक तो वाकई है कि मदर्स को खुद अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और वही वाली बात है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट इफ़ यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, इफ़ यू डू समथिंग ऑफ योर ओन, आपकी यहाँ की सैनिटी मेंटेन रहती है, तो बहुत आसान होता है आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना। और ये वाली जो बात है कि फिर आपको रिएक्ट कहाँ पे करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर रिएक्ट करना है। ऑल्दो मैं भी ये बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि लोग कुछ कह के ना भूल गए हैं, एंड यू नो यू आई कीप ऑन थिंकिंग कि वो उसने, हम तो अक्सर यू नो माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी नाइस, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई वो जो उसने बोला था वो भूल गया ये बोल के, या इवन मुझे उनकी कोई बात बुरी लग जाती है तो मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अभी तक वो बात, मैं कहती हूँ आपने उस वक्त वो कह दिया तो मैं उस बात को लेके बैठी हुई। ऑल्दो आई ट्राई, वो यू नो दिल और दिमाग, अपने दिमाग मेरा बोल रहा होता है कि इट्स ओके, हर बात को रिएक्ट करके हर बात को लेके बैठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी एक मदर खुश नहीं होती या उसको कोई चीज बॉदर करती है तो शायद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो आपके बच्चे होते हैं और आपका उनसे रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। तो यस, ये आई विश कि आई कैन नाउ प्रैक्टिस मोर और इतनी थोड़ी सी अपनी और बढ़ा पाऊं इस चीज को, नहीं कर पाती हूँ ऑनेस्टली। और शायद बहुत सी मदर्स जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे बात करती हूँ, नहीं कर पाते वो। नहीं, मैं जैसे बार बार अपना एग्जांपल दे रही हूँ नीलिमा, वो इसी वजह से कि आप सोचिए मैं जब कॉन्शियसली ये चीजें जानती हूँ, जब मैं भूल सकती हूँ ये बातें, तो फिर आप जैसे हमारे प्यारे दोस्त जो कि एवरी डे इन चीजों के अंदर नहीं है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ही कोई यू नो दैट्स लाइक समथिंग दैट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। बट ये कि जब हमें पता चल जाता है, now is the time to push ourselves forward। मतलब पता है तो अपने आप को, ये जो नॉर्मल वाली चीज है when I ask myself to shut up, वो इसलिए होता है कि भाई खुदा के लिए यार अंदर का तो बंद करो ना पहले, ताकि अंदर का ये मिक्स जब सही होगा तो तभी हम लोग बाहर कुछ
सही बिल्कुल एक्शन ये तो रिएक्ट 100%। अच्छा, एक चीज और ज़ोरा, मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में बात करें, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। अगेन मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तान में ज़्यादा इश्यूज हैं, एक एजुकेशन रेस जिसमें हमारे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, और उस वजह से आप देखें कि आजकल मदर्स का सारा मतलब शायद ज़्यादातर मदर आपस में बैठती भी हैं, तो वो कि अच्छा बच्चों की पढ़ाई किस तरह हो रही है, हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट्स, और बहुत ज़्यादा हम सब एक रेस में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हम सब एजुकेटेड हैं, और ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उस रेस में बिल्कुल ही भूल ना जाएं कि वो बच्चे की रिलेशनशिप भी हमारी कुछ है, हर बच्चे की अलग कैपेसिटी है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम आजकल के पेरेंट्स का, कि बहुत ज़्यादा एक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हम सब एक रेस में है जहाँ पर अपने बच्चों को बस पुश करने में लगे हुए हैं, भूल जाते हैं कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। तो इस पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ जरूर बात करें, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। थैंक यू, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करेंगे इससे कि ये एक बड़ा कॉमन एलिमेंट है विद इन द कम्युनिटी, जिसके अंदर जहां हम इस मैड रश की और रेस की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हो ये रहा है कि हमारा जो ध्यान है वो इंटेंशनली, मैं किसी को कह रही प्लीज डोंट माइंड, अनइंटेंशनली सिर्फ उन चीजों पे चला जाता है जो कि सामने हमें दिख रही है मटीरियलिस्टिकली, कि ठीक है बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, क्या वो किसी पॉपुलर टीचर से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या वो किसी पॉपुलर ग्रुप का पार्ट है नहीं है। बच्चा भी जो है वो आजकल के बच्चे 10 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड, जिस वक्त हम मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में होते हैं, यू वुड नॉट बिलीव, वो मुझे ये कहते हैं दैट वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट विद आवर फ्रेंड्स। तो मेरे लिए उनके लेवल पे आके उनको जवाब देने के लिए उससे पहले थोड़ा सा मैं अंदर से भी हिलती हूँ। आप ये सोचें कि इस टाइम पे इस में दैट वी आर, इमेजिन दीज चिल्ड्रन feeling depressed, feeling that they have a migraine headache because a friend has not been nice to them. ये वो फीलिंग्स हैं हिफ्जा, नीमा, फलक, जो हम लोगों को इतनी जल्दी एजेस में नहीं आई थी। We didn't know what all of this was. Is it not true? हमें नहीं पता था कि जो है वो प्राइवेसी के लिए हमें, मतलब these things were very, we were slow. Let's just consider us dinosaurs. Or that's what I say to these children. I say, okay, fine, I'm from the dinosaur time. Try to make me understand what is it actually that's the problem with you. तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि रेस में पढ़ने के बजाय हम अगर ये देख रहे हैं कि ठीक है हमारा बच्चा सारी पॉपुलर जगहों पे चला जा रहा है, ठीक है पॉपुलर स्कूल में हमने उसको एडमिशन करा दिया, पॉपुलर उस पे जगह पे जा रहा है और अपने दोस्तों में बता रहा है, तो उसको वो एक एलीट होने का उसको वो फीलिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी तो वो चीजें हैं जो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन में जाए। लेकिन बात सारी क्या है कि यहाँ पे जो चीज सबसे बड़ा गैप है नीलमा, वो ये है कि चाहे हम इस पे अग्री करें या ना करें, दिस इज अ डिस्कशन दैट कैन गो ऑन फॉरएवर कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे कोई काम नहीं किया जाता। आई एम वेरी ओपन टू से दिस। हमारे टीचर को ये सिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी बड़े स्कूल का, मैं यहाँ कहीं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, थैंकफुली आई एम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रुप्स। हर स्कूल के टीचर को जब 40 मिनट पीरियड के दिए जाते हैं, उस 40 मिनट के लिखने वाले पीरियड में वो 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकता, क्योंकि उसको अपना लेसन प्लान कंप्लीट करके जर्नल देना है। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। कितनी दफा I've also taught in Pakistan for a few years as well. I've seen the system inside as well. कहने का मकसद ये है नीलमा कि एक चीज तो हम सबको समझ लेनी होगी कि चाहे हम अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें या वो छोटे से छोटे स्कूल में चला जाए, हर जगह एजुकेशन एक ही तरीके से दी जा रही है। आई एम हैप्पी टू रिपीट माई पॉइंट, हर जगह एजुकेशन एक ही तरीके से डिलीवर की जा रही है। दैट्स इट। जब कोई माँ बाप मुझसे ये कहते हैं कि ज़ोरा आप कोई एक स्कूल सिस्टम का नाम ले सकती हैं जहाँ पे मैं अपने बच्चे को एडमिशन करा दूं, तो मैं सबसे पहले ये सच्चाई उनको बताती हूँ कि सर आप जहां भी जाएंगे एजुकेशन डिलीवरी मोड एक ही है, कहीं पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम नहीं हो रहा। तो माइंड ना करें, ये पर्सनालिटी बिल्डिंग जो है वो अब स्कूलों में नहीं है। उस्ताद ऐसे कोई बहुत कम है, वो बेचारे उस्ताद जो रह गए हैं
जो आपके बच्चे की जिंदगी या उसकी तरबियत पे काम करेंगे। इसका मतलब क्या है इल्मा, हिफ्जा, मेरे लिए और आपके लिए और भी बड़ा रेड फ्लैग है। हमारी तरबियत को और बेहतरीन होना पड़ेगा, क्योंकि इनको स्कूल में वो भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल एडेड है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो स्कूल से ये है, टीचर से ये है कि जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो हमें हमारा बच्चा ऐसे मिले जैसे एक प्रिंस सूट में खड़ा हुआ बच्चा है, जो हर चीज में परफेक्ट हो। आप लोग मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, टीचर्स हु आर बीइंग पेड the meager amount that they are paid to teach in schools in Pakistan, do you think they have the time to put their heart and soul into for the tarbiyah of your child? No, they don't. उनके पास नहीं, उनको वो ट्रेनिंग नहीं किया जा रहा है। कहने का मकसद ये जो बात आपने उठाई है, ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की माइंडफुली हमारी है। हम हाँ ये जरूर कर सकते हैं नीलमा, वो ये कर सकते हैं कि हम जब भी टीचर्स से मिले, स्कूल से इंटरैक्ट करें, अपना पॉइंट जरूर मेक करें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आपसे तरबिया के जुमरे में भी कुछ सीख पाएगा तो बड़ा अच्छा है। It is our responsibility as a citizen, because our children are studying in this community. टीचर्स बड़े मजे से कह देती हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हो जाते हैं बेचारे जो ये कह देते हैं आपका बच्चा इतना हाइपर है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, प्लीज आप लोग कुछ करें अपने बच्चे को। हालांकि जब हम टीचर्स को माइंडफुलनेस सिखा रहे हैं तो हम टीचर को बता रहे हैं कि प्लीज सुबह 40 मिनट का पीरियड शुरू करने से पहले सिर्फ 10 मिनट बच्चों से पूछ लें, पता कर लें कि आपकी क्लास का मूड क्या है सुबह में। अगर मूड आपको लग रहा है कि सब बच्चों का एक जैसा नहीं है, आप उनको पूरा लेसन पढ़ा भी देंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू लर्न और प्रोड्यूस द सेम। सो ये जो रेस है, इस रेस से भी, और ये जो चीजें भी है ना, ये हम लोग नीलमा इस तरह भी कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में ना वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग टू आवर चिल्ड्रन। मैंने ये भी बहुत नोटिस किया हमारे कम्युनिटीज के अंदर कि हमें लगता है हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जो जरूरी चीजें हैं वो उस सिस्टम में चली जाती है कि यार अभी तो बच्चे बड़े छोटे हैं, अभी इनको क्या समझ नहीं आएगी। सही बात है, राइट। जब बच्चे हर चीज समझ सकते हैं तो व्हाई डोंट वी सिट विद देम एंड टेल देम भैया दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, बहुत सारे लोग, मैं वैसे इस सब हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, बहुत सारे लोग बहुत काम भी कर रहे हैं नीलमा और हिफ्जा। इट्स बीन सो मेनी इयर्स, फलक आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह मेरी तरह कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, ग्रुप से जुड़ के लोगों के साथ स्कूल्स में जाके बात करके, रिक्वेस्ट करके कि यार हमें माइंडफुलनेस सिखाने दें अपने टीचर को। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ही टीचर को इजाजत नहीं दे रहा सुबह में 10 मिनट अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होने, तो मुझे बताए गलती किसकी है? उस टीचर की भी नहीं है यार। उसको बोला है 40 मिनट में रिटन वर्क खत्म कर लो, स्पॉट ऑन। और हिफ्जा मेरे ख्याल से इस बारे में फील कर सकेगी और कमेंट भी कर सकेगी, क्योंकि यूके में जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करती है हिफ्जा, जो है वो बहुत अच्छी विटनेस होगी अब इस चीज की ना हिफ्जा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना टीचर और स्टूडेंट्स का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। इवन लाइक फिजिकल पनिशमेंट इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। और दूसरी बात ये है कि टीचर जो है ना बच्चे से बात करता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। अभी इवन जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टीचर जो है वो इंडिविजुअली बच्चे को कॉल करके पूछता है कि व्हाट्स what are you doing, have you done these exercises, any problem, टीचर जो है ना बच्चे के साथ कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो लाइक आई फील दैट लाइक टोटली डिफरेंट, क्योंकि लाइक आई डिड माय ओ लेवल फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो इतना प्रेशराइज नहीं करते बच्चों को, इतना बर्डनाइज नहीं करते। लाइक बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता है, बच्चों को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में अभी तक है। तो ये जो बर्डनाइज जो वर्ड है ना, वो भी ऑल एटलीस्ट यहाँ पे हम सब सफर करते हैं उससे। बिल्कुल, बस सिलेबस करना है, कॉन्सेप्शनल नहीं होता बिल्कुल, जो है ना कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। ये बात भी बिल्कुल सही है। हाँ हिफ्जा और नीलमा की एक और बात से मैं अग्री करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो नीलमा ने सिचुएशन बताई ना कि जिसमें एक रश है, रेस है, और रेस के साथ साथ हो ये गया है कि क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि ये नॉर्मल है
तो जाहिर है उसके लिए तो ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन है, लेकिन बच्चों को कौन बताए कि नहीं बेटे ये सब चीज नॉर्मल हो रही है. इट इज टाइम फॉर अस टू स्पीक अप एंड टेल देम. Thankfully, alhamdulillah, you're sitting in an academic system जहाँ पे बेहतर है कुछ थोड़े से हालात. We need to tell our child to make sure that our child is somebody who moves forward to create that relationship in the classroom. नीलमा, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को पुश करती हूँ कि आप अपने टीचर से पुश करके रिलेशनशिप, अगर आपको लगता है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा है क्लास में कि सवाल कोई ना पूछे. आजकल बच्चों का बड़ा कॉमन कंप्लेन है कि मैम हमें चीज समझ में नहीं आती, कॉन्सेप्ट फलक, और वो सवाल नहीं पूछते. They are quiet throughout the session. They will keep quiet and they're not going to ask any questions because वो ये कहते हैं कि मैम हमें लगता है हम इस सब रिडिक्यूल करेंगे, हमारा मजाक उड़ेगा. Yeah, exactly. Lack of And one more confidence हो जाता है reason, बच्चे. one more reason इसका ये भी है कि जो burdenizing वाला जो हमने फैक्ट किया वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं, वो टीचर्स में. Because I've been in this teaching field like since more than 8 years, so I know कि जो मैनेजमेंट का प्रेशर होता है ना, जो आप 10 मिनट्स के टाइम का कह रही हैं वो करेंगे, जो टीचर्स करवा रही होती थी वो छुप के करवा रही होती थी. बिकॉज दे नो कि कोई पेरेंट देख लेगा कि फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं ऑन टाइम, और बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा, कॉपी चेक नहीं हो रही, बच्चों का जो सारा जो सिलेबस है वो ऑन टाइम नहीं हो रहा है. तो ये वाली जो चीजें ना, फिर वो टीचर भी उतना ही बर्डनाइज्ड है जितने पेरेंट्स हैं. तो बेसिकली ये हर जगह दोनों एंड से समझने की बात है. जो हम लोग कह रहे होते हैं कि स्कूल और पेरेंट्स या टीचर और पेरेंट्स मिलके बच्चे बनाते हैं, तो ये आई थिंक इसी वजह से लैक हो गया है, क्योंकि दोनों एक रेस में लग गए. टीचर्स भी रेस में लग गए हैं. जितने ज्यादा एग्जैक्टली बढ़ाते जा रहे हैं. या जितना क्लास का भी अच्छा रिजल्ट होगा, टीचर को भी उसी हिसाब से वो जो है इंक्रीमेंट्स लगेंगे उसके, और वो वाली चीजें भी हो गई है. और बच्चे का हर एक का कैपेसिटी डिफरेंट वाली बात जो नीलमा कर रही है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. हम टीचर्स को भी कहते हैं नीलमा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके 30 के क्राउड में अगर 20 भी जो है वो डाउन फील कर रहे हैं, तो जो बहुत गाढ़ी चीज है सीखने वाली वो उस दिन नहीं सिखानी बाबा, वो हफ्ते में अगले पीरियड में बता दूं. जो हल्की फुल्की एक्टिविटी वाली चेयर अप वाली चीज है वो उस दिन कर लो. किसी के घर में हो सकता है कि बच्चे ने रात में गुस्से में खाना नहीं खाया हो, हो सकता है उसने घर में माँ बाप को लड़ते हुए देखा हो, शायद सुबह में अपसेट हो. There are so many things that happen. Children आजकल बच्चे सेंसिटिव हो गए, ओवर सेंसिटिव. बिल्कुल I must say. तो but I think ये बड़ी अच्छी बात है फलक जो आपने भी करी कि everybody needs to take a step forward. I think हिफ्जा भी अग्री करेगी और नीलमा भी अग्री करेगी और मैं भी अग्री that all of us need to consider everybody's situation is not a rosy picture here in our community. बिल्कुल हर आदमी अपने प्रेशर से डील कर रहा है और अपने एक्सपेक्टेशन की लिस्ट जो है ना वो खाली टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा है. फलक डेफिनेटली. ओके नाउ, अच्छा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दिस माइंडफुल पेरेंटिंग, तो देयर इज अ टर्म नोन एज नेचुरल ज़ेन मास्टर्स. जब मैं इसके बारे में मैंने कहा कि जरा खुद भी थोड़ा सा बीइंग एन होस्ट आई शुड नो द थिंग्स. देयर इज अ कोटेशन ऑफ जॉन ब्रेडशॉ दैट चिल्ड्रन आर नेचुरल ज़ेन मास्टर्स, देयर वर्ल्ड इज ब्रांड न्यू इन ईच एंड एवरी मोमेंट. तो ये चीज बड़ी कनेक्ट हुई मुझसे ना कि समझ आया मुझे. तो कुछ आसान अल्फाज में ओवर टू यू, जरा समझा दीजिए इसको, ये है क्या नेचुरल ज़ेन मास्टर. सबसे पहली चीज जो माइंडफुलनेस को हेल्प को सपोर्ट करती है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा उससे फाउंडेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा एक लाइट डालना चाहूंगी. वो ये कि जैसे हमने अभी सेल्फ कंपैशन की बात की, हमने एम्पैथी की बात की, उसमें काइंडनेस आ जाती है, और मैं अभी उसी की तरफ जाना चाह रही थी फलक, जिसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, जो एक्सपेक्टेशन हमारी कम्युनिटीज से है, हमारी गवर्नमेंट से है, हमारे सिस्टम से है, हम प्लीज दूसरों की एक्सपेक्टेशन लिस्ट बनाने से पहले अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके ये समझे कि जैसे हम किसी दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अदर पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. पहली चीज तो बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए कि जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मुझे फला इंसान से या फला से ये चीज चाहिए, उसी तरीके से दूसरा कोई शख्स जो मेरे साथ किसी भी रिलेशनशिप, रोल में, जॉब में, घर में है, उसकी भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन लिस्ट है. एवरीबडी हैज इट. अब दूसरा स्टेप वो ये जरूरी है जानना कि हमारा है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, उसी तरह हमारे बच्चे परफेक्ट नहीं है,
हर चीज बिल्कुल। फ्लॉड है, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स नॉट गॉड इज फ्लॉड, व्हिच इज क्लियर। Yeah. सो इस चीज का एक्सेप्टेंस ऑफ द करंट सर्कमस्टांस बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो मैं रिकैप करना चाहूंगी वो थी कि सेल्फ पिटी को छोड़ दें, सेल्फ पिटी को प्लीज छोड़ दें। अफसोस जो इंसान का है, जो आप अपने आप के लिए बिल्डअप कर लेते हैं, तो आपका एक अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो आपको कहता है अरे यार मैंने तो इतना सारा कुछ करा, ये क्या हो। Yeah. दिस इज द एक्ट ऑफ सेल्फ पिटी आई ऑलवेज रिक्वेस्ट। और ये भी मैंने अपने अंदर से भी बड़ी मुश्किल से निकाला है, बिकॉज ये बहुत आसान चीज होती है किसी भी इंसान के लिए मेंटली फेज में जाना। सेल्फ पिटी हमें रोकनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग की जैसे हमने बात की थी वो प्लीज ध्यान रखें। जहां तक एक्शंस, वर्ड्स, बिहेवियर्स, रिएक्शंस, ये सब एक ही ट्री की ब्रांचेस है ना पलक। अभी जो आपने जिक्र किया उसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे करूंगी कि एक ही दरख्त की अलग अलग शाखें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम रूट पे आते हैं फलक, तो रूट पे आने का मकसद क्या? वो इंसान, दैट इंडिविजुअल हु इज सॉर्टेड हियर एंड हियर, दो जगहें, माइंड एंड द हार्ट। हमारे यहाँ जो है वो अक्सर यही जंग चल रही होती है कि हमारा ये दो मैच नहीं करता, होता है ना, ये एग्री करता है तो ये फेल करता है, ये एग्री करता है तो ये फेल करता है। सबसे पहली जरूरी बेस लाइन है फलक, सिंपल समझने वाली, हमारी सिंक्रनी, जहाँ पे ब्रेन और हार्ट एक जगह हो, वो जब तक नहीं होगा हमारा एक्शन अलग होगा, कॉज अलग होगा, स्पीच अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगा, स्पाउस के लिए कुछ और होगा। So what we need to understand very simply is the notion कि हम जब तक अपने आप को सुलझाना समझ जाएंगे कि किसी और को भी सुलझा नहीं सकते। अब वक्त बदल गए हैं, आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो सोशल प्रेशर, वो फैमिली प्रेशर, वो इकोनॉमिक प्रेशर हमारे माँ बाप पे नहीं था। एक अर्न करता था और 15-15, 20-20 लोग फैमिली में खाते थे ना। आजकल के दौर में हर मेंबर जो 18 साल से ऊपर है वो अर्निंग मेंबर है ऑफ द फैमिली, फिर भी सबका बेचारों का पूरा नहीं हो पा रहा। वी डीलिंग विद सिविक डिस्टर्बेंस, नो गैस, नो पानी, वी डीलिंग विद फैमिली इश्यूज, वी डीलिंग विद नो जॉब्स इन द मार्केट, वी डीलिंग विद। कहने का मकसद ये कि इस सब में हम अगर खुद को सुलझाएंगे नहीं तो बह जाएंगे, और ऐसा बहेंगे कि अपने साथ अपनी पूरी फैमिली के, अपने बच्चे सब बहा के ले जाएंगे। और मैं वो फिजिकली नहीं कह रही, मैं सिर्फ वो मेंटली और इमोशनली कह रही हूँ, जिसको मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी चीज हम सीख ही नहीं सकते जब तक हम सुलझा ना लें। तो पहला स्टेप और फाइनल सब चीज वो ये फलक कि कोई भी एक्ट को एक्शन में डालने के लिए, किसी भी माइंडफुल नोशन को एक्शन में डालने के लिए सुलझा लें, यहाँ से सुलझा, यहाँ से सुलझा लेंगे तो एक्शन, वर्ड्स, बिहेवियर सब चीज सिंक्रनी में चलता रहेगा। तो खुद अगले को लगेगा, बच्चे को दिखेगा, कहेगा भाई हमारी अम्मा को क्या हो गया यार, शी इज बीइंग ब्यूटीफुल इन द हाउस, व्हाट्स रॉन्ग विद हर। उनको गुस्सा आता है, बजाय मेरे ऊपर चीखने के मैंने ग्लास तोड़ा था, ये कमरे में चली गई, इनको क्या हुआ, इज शी फीलिंग ओके, यू नो। एक दफा, दो दफा हिफ्जा, तुम अपने बच्चे को नहीं, एक दफा बोलोगी ना नहीं खाना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट से उठना नहीं, बिकॉज ये हमारा फैमिली टाइम है, तो अच्छा बाद में भूख लगेगी तो खुद से गर्म करके खा। तो वो एक दफा सुनेगा, दो दफा सुनेगा, तीसरी दफा कहेगा यार ये अम्मा हुआ क्या है, अच्छा चलो फिर अब कौन उठ के गर्म करेगा, खा ही लेता हूँ मैं जिस वक्त फैमिली बैठा हुआ तो हूँ यहाँ, rather definitely. I just feel Palak very strongly कि इन सबको हम जो है वो, और मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, तो बहुत सारे लोग जब ऐसा कुछ कहते हैं कि थैंक यू, मैं उनको कहती हूँ आपको कोई सुनहरे पर नजर आए मेरी वीडियो में, तो मुझे बहुत सारे लोग हैरान होकर कहते हैं क्या सुनहरे पर, मैं कहती हूँ आई फील लाइक आई हैव गोल्ड विंग्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट ओनली व्हाई दैट दिस हैज
help me only recognize my pattern. अब जब मैं रिएक्शन मोड में आती हूँ ना, मैं खुद ब खुद अपने आप को रोक लूंगी, नहीं भाई अगर रिएक्ट कर गए तो अभी तो ये 24 घंटे नहीं 48 घंटे अजाब गुजरेंगे, उससे ज्यादा बेहतर है मैं पानी पी के 2 घूंट बैठ जाऊं। बिल्कुल। रिपल इफेक्ट है ना, सिंपली फलक, वो खुद ब खुद वापस आके आप कंट्रोल में हो जाते। आपने अगले को भी खुश कर दिया, हिफ्जा ने अपने बच्चे को भी खुश कर दिया, बिकॉज हिफ्जा का बच्चे को लगेगा इंशाल्लाह कि अम्मा जो है वो तो गिव अप कर देंगे मेरे टैंट्रम के आगे। वाह भाई, नहीं खाना था मैंने तो खाया ही नहीं। लेकिन असल में हिफ्जा ने बहुत माइंडफुली एक कंट्रोल थ्रेड उसके लिए छोड़ दिया। इंशाल्लाह वो उसको फॉलो करके पावरफुल फील करते हुए सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। Okay, now any question, mothers, you want to ask, or should I do have questions? Hifza? Yeah, what are the key factors of mindful parenting? Hello? Super question. और mindful parenting के अंदर okay, now I would want you to also understand this. When it comes to mindfulness and when it comes to mindful practice, when you're going to hear people from around the globe, every person is going to give you a different perspective. This is the beauty of being mindful. हर इंसान का जो अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप होता है और जो उसको अपने एक्सपीरियंस से फील होता है कि ये चीज सबसे बेस्ट टिप है। आपको हो सकता है माइंडफुल पेरेंटिंग जब आप गूगल करेंगे तो आपको हर माइंडफुल एक्सपर्ट की एक अलग नई चीज पता चलेगी। तो एज अ माइंडफुल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट ऑन माय ओन, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिसमें माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो जो हमने फर्स्ट फेज की बात की है ना हिफ्जा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है टू माइंडफुलनेस विद योर फैमिली, वो कंप्लीट हो सकेगा। और वो ये कि जो हम सेल्फ कंपैशन वाली चीज फील की है हिफ्जा, जो बताई मैंने आपको, वो की है आप। इफ वी डोंट टेक केयर आवरसेल्व्स, आवर चिल्ड्रन नो दैट। मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, जब हम अपना ख्याल नहीं रखते इल्मा और हिफ्जा, हमारे बच्चों को ये बात मालूम है। तो सेल्फ कंपैशन जो है वो आपके बच्चों के अंदर भी ये जो हिस जिसको हम कहते हैं ना सेंस होता है, द सेंस ऑफ फीलिंग, द काइंडनेस, द फीलिंग ऑफ एम्पैथी, ये उसी वक्त ही आएगी जब आप सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तो की हिफ्जा आपकी ये हो गई माइंडफुल पेरेंटिंग की कि आपने सेल्फ कंपैशन को जो है अब शामिल करने लगना है। हालांकि इसके बाद बड़े हैरान शने मिलेंगी आपको अगर आपने कह दिया मैं तो सोने जा रही हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड, मे बी यू गाइस कैन डू व्हाटएवर यू वांट। हो सकता है वो जरा 2-3 दफा आपस में बात करें कि भैया ये तो लग रहा है कोई बड़ी गड़बड़ होगी अम्मा के साथ, लेकिन उसके बाद दे विल अंडरस्टैंड दैट अम्मा रियलाइजेस नाउ दैट व्हेन अम्मा नीड्स टू रेस्ट शी विल रेस्ट, शी विल नॉट गो इन द किचन टू पुश हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द चूल्हा and say अच्छा लाओ। So you have to stop that. First thing, self-compassion. Next key, the second key है getting your partner involved into parenting mindfully. आप ये अकेले, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। No matter आप कितनी कोशिश करेंगी, जब तक the other parent is not going to step into the picture, the children will never feel the picture complete. उसकी importance उतनी नहीं रहेगी। So second tip ये कि अपने पार्टनर को से ये चीजें डिस्कस करके, एंड आई एम श्योर क्योंकि हमारे सब पार्टनर्स माशाल्लाह इतने अंडरस्टैंडिंग है और खुद इतना ख्याल रखते हैं कि अगर छोटे छोटे चीजों के जरिए जो है, फॉर इंस्टेंस जो संडेज वो फारिग होते हैं हिफ्जा, वो संडे को कोई एक टॉक टाइम, सिर्फ बाबा टॉक टाइम होना चाहिए। वो मैंने जो है वो एक हमने एक डेवलप किया हुआ है घर के अंदर कि जिसके अंदर अम्मा भी नहीं होती, वो सिर्फ बाबा टॉक टाइम। तो उस वक्त both of my kids are alone with Abba, even if it's in the bed in the morning on Sunday. उस वक्त अम्मा नहीं है, अम्मा इधर उधर हो गई, ठीक है ना। So Abba is speaking to the kids saying अच्छा क्या हुआ था, how was Amma's mood this week? फिर वो रैंट करते हैं, फिर वो बताते हैं, पता चलता है कि आज कोई शिकायत गई है अम्मा की, आज कोई दूसरी शिकायत गई है अम्मा की, इस हफ्ते ये हुआ था, इस दफा अम्मी ने ये करा। सो जो इन्वॉल्वमेंट है पार्टनर की हिफ्जा, उसको की बनाए, उसकी कोशिश करें इंशाल्लाह।
तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन शो करना बंद कर दें। स्टॉप रिएक्टिंग, डोंट रिएक्ट। जब तक आप रिएक्ट करना नहीं छोड़ेंगी तब तक आपके और मेरे बच्चे देखो, बिकॉज ह्यूमन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने सारे पॉइंट दिए, उनको पॉइंट्स अपने पेरेंट्स के पता होते हैं। हिफ्जा, हमारे बच्चों को पता होता है ना हमारी माओ का ब्रेक पॉइंट क्या है, कहाँ तक अम्मा जो है वो जाएंगी और उसके बाद तैयार हो जाएंगी। टैंट्रम को कितना लंबा खींचे कि अम्मा बोले यार जाओ यार, आई हैव अ हेडेक नाउ, होता है ना ऐसा। सो की है ना हिफ्जा, the control that these children have, ये इनविजिबल है ना हिफ्जा, लेकिन ये कंट्रोल हम कंट्रोल में, हम अंडर कंट्रोल ही रहते हैं माशाल्लाह, वैसे आधे से ज्यादा। तो इसको वापस लो, टेक द कंट्रोल बैक, बट वायलेंस से नहीं, चीखने से नहीं और रिएक्शन से नहीं। आपने उनके साथ ऐसे चलना है जैसे हमने अभी बात की, थोड़ा थोड़ा करके, कि वो उनको खुद ही पता नहीं चलेगा कि ये डिसीजन आपने लिया उनके लिए। इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है आपके बच्चे को ये लगे आई एम सो पावरफुल, आई मेड द डिसीजन एंड अम्मा सेड यस। हालांकि पीछे से होमवर्क अम्मा इतनी स्मार्ट है कि होमवर्क अम्मा ही कर रही थी अब्बा के साथ साथ, टू हेल्प मेक द चाइल्ड डिसाइड। कहने का मकसद ये कि आजकल के बच्चे कंट्रोल में होते हैं जब, तो वो अच्छा फील करते हैं। ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन ऑक्यूरेंस है। दे फील एम्पावर्ड अगर उनको लगे कि उनके कहने में उनके अम्मा अब्बा सारे काम करते हैं। बड़े खुशी से अपने दोस्तों को बताते हैं यार हमने तो अब्बा को बोला, हमने फौरन कर दिया, ये मैंने अम्मी को बोला था, वो तो 1 मिनट मना नहीं किया, उन्होंने फटाफट कर दिया ये चीज। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ नाइस थिंग फॉर देम। सो कैसे डील करें ऐसे बच्चों के साथ? बड़े सिंपली वो ये कि रिमोट कंट्रोल भी हिफ्जा के हाथ में रहे, मेरे हाथ में रहे, एंड एट द सेम टाइम हम रिएक्ट क्योंकि बंद कर रहे हैं ना, रिएक्शन नहीं दिखा रही हिफ्जा, ना मैं रिएक्ट कर रही हूँ, ना आप रिएक्ट कर रहे हो, ना नीलमा रिएक्ट कर रही है। ऑटोमेटिकली रिएक्शन जब आपकी तरफ से बंद होगा ना, आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपके बच्चों का एक्शन ही बदल जाएगा, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे कि ये जो रिएक्शन नहीं आ रहा है इसका एक्चुअली मतलब है क्या। दैट्स द फोर्थ थिंग, ठीक है। उसके बाद जो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंक्लूजन ऑफ पार्टनर की बात की, उसके बाद फिर हमने बात की टू टेक द कंट्रोल बैक हिफ्जा, जिसमें आप कंट्रोल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को माइंडफुलनेस की वजह से समझ नहीं आया है कि आपने कोई चीज उससे छीनी है, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ एक्ट किया था। अच्छा नहीं खाना, कोई बात नहीं, नहीं सोना, जागते रहो, सुबह तो 6 o'clock पे ही उठना है ना स्कूल के लिए, उठा दूंगी, नो प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू स्लीप, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होगा। अगर आप माइंडफुल हैं, सेल्फ कंपैशन से दिमाग को चला रही हैं, तो आप भी अपने आप को कह सकती है ना कि यार क्यों ब्लड बॉईल करें। जब तक कि बच्चा फील नहीं करेगा, आज के बच्चे को लॉजिक समझ नहीं आएगा, वो बच्चा नहीं फॉलो करेगा आपकी और मेरी बात। बिल्कुल सिंपल। हर बच्चे का सवाल है, कोई भी सीधा सा काम बोलो, नहा लो, मैं अभी क्यों नहाए, व्हाई शुड वी टेक अ शावर नाउ, कैन वी नॉट डू इट लेटर, होता है ना ये सवाल। So to wrap it up, बेहतरीन ये है हिफ्जा, बोल्ड एक्शन, सेल्फ कंपैशन, एडिंग योर पार्टनर इन, और उसके अलावा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंपैशन, तो मैंने ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए कहा है। आप ओवर थिंकिंग नहीं रोकेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, यू विल बी सिक आफ्टर अ व्हाइल, आपको एंटी एंजाइटी की गोलियां लेनी पड़ेगी, क्या फायदा। ओवर थिंकिंग को बंद कर, जहां ओवर थिंकिंग अपने आप को आपको आने लगे, टेल योरसेल्फ यू हैव टू स्टॉप, अदरवाइज यू विल गो मैड। जो सैनिटी की नीलमा बात कर रही थी, you have to remain sane for these children. So overthinking को माइनस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, माइंडफुलनेस को समझा जाता है कि जी ये योगा मैट पे बैठ के मेडिटेशन करने वाली है। हालांकि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मैं सबको कहती हूँ कि यार ये तो बगैर लाइट ऑफ किए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सब मुझसे पूछते हैं आप ये कैसे किया आपने, तो मैं कहती हूँ यार कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट हियर,
हिफ्जा एंड नीलमा, वी कैन प्रैक्टिस दिस विद आवरसेल्व्स। जब हम क्वाइटली 3 मिनट बैठ जाते हैं ना, 2 मिनट अलग होके, और हम रिएक्ट नहीं कर रहे, दैट्स व्हेन वी आर माइंडफुली ब्रीदिंग। आप उस सांस लेने बगैर किसी और सोच के, आप अपने आप को हिफ्जा 5 मिनट भी देंगी ना अगर इन बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट और बच्चों का टेंट्रम, आप यकीन करें इंशाल्लाह आपके बच्चों का एक्शन आपकी तरफ बदल जाएगा और उनका रिएक्शन और सवाल आपकी तरफ आ सकता है, मम्मा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, आर यू फीलिंग फाइन, बदल गई मम्मा। ठीक है। so, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट की कंपोनेंट्स है माइंडफुल पेरेंटिंग के। ऑल्दो मैंने पहले भी जिक्र किया था और मैं अभी भी करूंगी that I do wellness programs as a series format. वेलनेस जो है या मेंटल वेलनेस या मेंटल हेल्थ की जो बात है, पाकिस्तान में एक और मेरी छोटी सी गलत है, बोलिए सबको लगता है कि हर प्रोग्राम हर टॉपिक एक क्विक फिक्स एल्फी ग्लू है, नहीं हो सकता ओवरनाइट कुछ भी। हमें रोजाना, हमें हर हफ्ते एक दफा बात करनी है, एवरी वीक वी हैव टू सिट एंड स्पीक, ताकि हमारा आपस का सपोर्ट सिस्टम जो इस वक्त पूरी तरह बिल्डअप नहीं है, पूरी तरह मैच्योर नहीं है, वो पूरी तरह खड़ा हो जाए। हमें ये पता हो कि हमारा हफ्ता गुजरेगा नहीं जब तक ये हम खवातीन आपस में माइंडफुली कनेक्ट नहीं कर लेती, चाहे वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो फोन पे क्यों ना हो। बिल्कुल अच्छा, यहाँ एक चीज दिमाग में, या द लास्ट पॉइंट, आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया हमारा, बट आई थिंक दिस शुड बी आस्क्ड दैट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये दो चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं पेरेंट्स और लोगों के माइंड में। आर दे सेम, आर दे डिफरेंट? ओवर टू यू। मैं बताऊं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैंने अभी एक छोटे से शेल में डाल के इसी बात को कवर करने की कोशिश की थी फलक, वो ये कि माइंडफुलनेस इज नॉट मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने करंट सर्कमस्टेंस को समझ रहे हैं और समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि अगर वो सिचुएशन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ खुद जाएंगे, अगर पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अपनी सर्कमस्टेंसेस को समझ रहे हैं। जिस वक्त हम अपने उस अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं जहां पे हम इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, ये एक चीज बड़ी हमने काफी दफा सुनी भी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ignorance is not bliss. Ignorance can be the cause of your ailment. आपको पता ही नहीं चलेगा आप बीमार हैं, you wouldn't know you're sick, you wouldn't know you need medicine for a headache that is not migraine. आपको क्यों हो सर दर्द आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि सर दर्द आपको क्यों आ रहा है, आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करना इज नॉट द की। इसीलिए माइंडफुलनेस हमें बार बार सिर्फ ये बता रहा है कि माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि मैं लाइटें बंद करूं, पर्दे बंद करूं, बच्चों को बोलूं मुझे 1 घंटे तक आना नहीं कमरे के अंदर, खबरदार एक आवाज नहीं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जब साथ चाहिए आपको और मुझे, तो माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब है कि उस सिचुएशन में रहते हुए, उसी पैनिक फेज में रहते हुए आपको पता होना चाहिए आपने कैसे काम डाउन करना है अपने आप को, बाकियों को छोड़ दें। माइंडफुलनेस का मतलब है आप सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे, किसी दूसरे से नहीं। तो हमारा बच्चा काम डाउन नहीं होगा, पहले मैं काम डाउन, आई विल स्टार्ट। तो जो हम फलक और मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जो हम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के साथ माइंडफुलनेस करते हैं, और जब मैं माइंडफुल बैंकिंग करती हूँ, तो जब हम माइंडफुल प्रैक्टिसेस इनको एंड ऑन द डेस्क, फॉर इंस्टेंस अब आपके बॉस ने गुस्सा किया आपके ऊपर, दिन आपका शुरू हुआ है, मंडे को आप पहुंचे ऑफिस और आपको सुबह में कुछ झाड़ पड़ गई, तो गया आपका दिन, बर्बाद हो गया उस दिन। तो उस दिन के लिए भी कोई इतना बुरा दिन हो, तो मैं यही कहती हूँ कि यार आप 5 मिनट अपनी सीट पे बैठ जाएं, रिलैक्स एंड ब्रीथ, हियर योरसेल्फ ब्रीदिंग, और सिर्फ रिएक्ट मत करें, बॉस को रिस्पॉन्स उस वक्त ना दें, रिस्पॉन्ड उस वक्त ना करें जिस वक्त आप एंग्री फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस वक्त
इन नेगेटिव चीजों के टाइम पे फलक रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाता है, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस में है। तो बार बार हमें हमारे बड़े समझाते हैं कि बेटा ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। माइंडफुलनेस सिर्फ यही है कि वो आपको बता रही है कि भैया ठंडे हो जाओ और अभी की सिचुएशन को समझ लो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, माइंडफुलनेस के साथ जब हम सीखना शुरू करते हैं माइंडफुलनेस, या अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम मेडिटेशन से शुरू करें, क्योंकि इस वक्त आपको, मुझे, हिफ्जा को, नीलिमा को, हम सबको जब ये कॉन्सेप्ट अपनी फैमिलीज में इंट्रोड्यूस करना है ना, तो हमने अगर उनको मेडिटेशन में लगा दिया तो वो जो ये सुलझाना और सफाई करना है ना यहाँ का, तो ये सब सॉल्व नहीं हुई, ये सफाई नहीं हुई। So we need to block it out. Exactly. सबसे बेहतरीन टाइम मेडिटेशन का उस वक्त आता है जिस वक्त आपको और मुझे लगे इंशाल्लाह कि हमारे आसपास के जो स्टेक होल्डर है ना, हमारी फैमिली, हमारे काम पे लोग, उनको ये कॉन्सेप्ट का बेसिक समझ में आता है। उसके बाद हम मेडिटेट कर सकते हैं और शोर कर सकते हैं, और वो जागते हुए भी, आंखें खोल के भी मेडिटेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन अनदर सेशन आई वुड लव टू डू अ मेडिटेशन सेशन ऑनलाइन, जिसमें हम लाइव मेडिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी, जो कि फलक मेरे ख्याल अभी अनाउंस भी करेंगी, कि लर्निंग लैब के साथ what we've done is that we are working to develop, we've already developed mentoring hub के wellness programs mindfulness के लेकर आया पाकिस्तान में, and we're doing it for the common person. ये कोई elite चीज नहीं है जिसके लिए आपको 50,000 रुपए का कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा to understand. It's as basic as a normal person being able to afford to sit in a mindful program. So at the same time, दोनों चीजों को सामने रखते हुए, what we have collaborated at is that we're going to work on a series of programs, inshallah, with Learning Lab, physical or online, जैसे भी हमें लगेगा, which is going to help us together build everything together. वो जो मैंने एल्फी ग्लू वाली बात की थी, वो हम quick fix नहीं कर सकते. We need to sit with each other, phase by phase. अगर चाहे हम once a month भी बैठे ना, वो भी हमारे लिए इंशाल्लाह स्टेयरकेस की तरह काम करेगा इधर अंदर, Inshallah. mindfully. Definitely. So thank you so much to all the beautiful ladies for your time and for your dedication towards this session. And I think you have enjoyed as well, and the audience as well, because it's a very great, knowledgeable and worth taking session for me as well as a host. And thank you so much, Zohra. Thank you so much, Hifza. Thank you so much, Neelima Faraz, for being here with us and trust this level, showing trust to the Learning Lab team. And definitely, जो एक announcement थी वो यही थी that Learning Lab is going to collaborate with Mentoring Hub, and we are going to have multiple in these kind of sessions on mindfulness and so many awareness sessions as well with different topics. And we're going to do it live over here virtually, and we're definitely going to discuss it to you or announce it later on as well. So thank you so much, everyone. And this is it from my side. Do you want to add something? Yes. I would like to add something. I hope Hifza and Neelima, because we have been together in this discussion, was I able to somehow satisfy some of your concerns? या और ऐसी चीज आप लोगों के दिमाग में अगर है that you would feel like I could add value to Hifza and Neelima right now before we wrap up? Thank you so much. बहुत ज़्यादा pressure था दिमाग पे, क्योंकि like being a mom over here in overseas it's very different, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आपके relatives होते हैं, तो अगर नहीं है आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपने फॉरन हैंड ओवर किया अपने इन लॉज को या पेरेंट्स को, एंड देन यू कैन गो एंड हैव सम रेस्ट टाइम एंड सम मी टाइम. बट यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि माय ट्विन्स आर लाइक 3 years old, they are nearly 3, not yet, but मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है लाइक खाना खिलाना, देखना, you know, to engage them in different activities. लेकिन मेरे काफ़ी सारे concepts clear हुए, and thank you so much कि आपने मुझे support किया, मुझे मेरे mind को सेट किया और मुझे different ideas दिया. Yeah, thank you very much. You're so supportive. Thank you. Now come to Neelima. Thank you, Zohra. Thank you, Falak. Thank you, Zohra.
And thank Right. you, Falak and Learning Lab, for letting me be a part of it. The talk was very good. मैं शायद honestly कम इस तरह के webinars attend करती हूँ या देख पाती हूँ, but I actually enjoyed it. और बहुत अच्छा मुझे constructive discussion लगा एक overall, और सीखा मैंने. And I'm sure कि continued इस तरह के वही वाली बात है कि सिर्फ एक session would obviously not do. It needs to be something जो कि आप Yeah, constantly definitely. reinforce करें. जैसे कि ज़ोरा ने कहा कि since she knows it but still आप struggle करते हैं कभी-कभी. I know कि मुझे balance strike करना चाहिए but हर बार possible नहीं हो पाता है. तो वो continuous एक reinforcement रहेगा तो that would be Yeah. great. डेफिनेटली. और जैसे मैंने अनाउंस किया, आगे भी इस तरह के जो है होते रहेंगे सेशंस, एंड यू विल डेफिनेटली take lots of advantages from our platform and from Zora ahead as well. So Always, thank always you. here, Mike. Bilkul. We know that. That's why we always call you, and it's a great to be with you and learn from you and have a great time to you. बहुत अच्छी opportunity है हमारे लिए भी. And thank you so much everyone. And this is it from my side. So thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take Have a care. great Take Sunday, care. guys. Bye-bye. Good Bye. Hafiz. Bye. Allah Hafiz. Bye, Lisa. Bye. Allah Hafiz.